মিনিটের বাজেট স্পিচে আপনি দেখবেন একটা নিম্যান্স ইনস্টিটিউট করার কথা বলা হয়েছে। সেটা একটা এক্সট্রা, যেমন ব্যাঙ্গালোরে নিম্যান্স রয়েছে, আরো এক্সট্রা দুটো নিম্যান্সের কথা বলা হয়েছে। একটা করা হচ্ছে আসামে, একটা করা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। বাংলার একদিকে ঝাড়খণ্ড, একদিকে আসাম। ইস্টে আপনার হচ্ছে আসাম, আর ওয়েস্টে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড। মানে বাংলার মানুষের অসুবিধা হলে হয় ঝাড়খণ্ড যাও, নইলে আসাম যাও। বাংলায় করবো না। বাংলার মানুষকে অত্যাচারিত করে রাখা, বাংলার 10 কোটি মানুষকে যদি কেউ বাংলাদেশি বলে বা বাংলাদেশি মনে করে, সেটা এই দেশের প্রধানমন্ত্রী, এই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এই দেশের অর্থমন্ত্রী মনে করে। তারা বাংলার জন্য কোন রকম কোনো বরাদ্দ বা কোন রকম কোনো প্রতিকার বা আর্থিক প্যাকেজ বা সমাধান কিছুই আনেনি এ বাজেটে। বাংলার কৃষক হোক, শ্রমিক হোক, তপশিলি হোক, জনজাতি প্রতিনিধি যারা রয়েছে, মানে কারোর জন্য, মৎস্যজীবী হোক, কারোর জন্য কিচ্ছু নেই এই বাজেটে। যুব সমাজের জন্য আলাদা কোনো পৃথক কর্মসংস্থানের দিশা বা রোডম্যাপ কিছুই করা হয়নি। 85 মিনিট খালি ভাঁট বকে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পুরনো যে কথাগুলো বলেছিল, ডানকুনি সুরাট করিডোর আগের বারও বলা হয়েছিল, সেটাই নতুন ভাবে বলা হয়েছে। নতুন বোতলে পুরনো মদ। ভোট আছে, ভোটের সময় বাংলাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা তো থাকবেই। আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার বেকারদের সকার করার, তার ব্যবস্থা কি? বেকারত্ব হটানোর বুদ্ধি কি আছে, তার ব্যবস্থা করো। কৃষিকে বাঁচাও। 46% মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত, তারা গরিব। মানুষের রোজগার বাড়াও, মানুষের পকেটে খরচ করার মতন পয়সা যোগান দাও। কনজামশন পাওয়ার, খরচ করার ক্ষমতা যেন মানুষের বাড়ে। এগুলো তো মূল দাবি। আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর বাড়ুক, এগ্রিকালচার সেক্টর বাড়ুক। সারা বিশ্ব জুড়ে আজ নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার কারণে ভারতবর্ষের অর্থনীতি চাইলেও বাড়তে পারছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকারের কি পলিসি আছে? আজকে $1 বিনিময়ে 90 টাকার উপরে আমাদের টাকা হয়ে গেছে। আমাদের টাকার দাম দিনের পর দিন কমছে। সেখান থেকে উদ্ধার করার দীর্ঘস্থায়ী পলিসি কি আছে? একটা ট্রেন দিয়ে দেশের সমস্যার সমাধান তো হবে না। রুটরুজির ব্যবস্থা কোথায়? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেখানে কি করা হচ্ছে? সামাজিক প্রকল্পে কি করা হচ্ছে? 100 দিনের কাজের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হচ্ছে? আমরা এগুলো দেখব। शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का ऐड देख रहा था। वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियाँ हैं, वरुणा, क्या हाल है नदियों का? आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो कहाँ बनाएंगे? पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप? बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। जैसे बिना नमक की सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता है, हमारे बजट का वही हाल है, किसी काम का नहीं। बजट 2026 पूरी तरह से राजनीतिक तौर से एक दिशाहीन बजट है। पॉलिटिकल पॉलिसी बैंक करप्सी को दर्शाने वाला बजट है, साबित करने वाला बजट है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है मम्बो जम्बो। ये एक मम्बो जम्बो बजट है जिसमें बहुत सारे मुश्किल अक्षर
और अंग्रेजी के लतीफे तो कहे गए जिनका मायना ना वित्त मंत्री जानती, ना भाजपा जानती, ना देश और भारत को समझ में आया। बहुत सारी कमेटियां बनाई, पर काम के नाम पर केवल एक बहुत बड़ा सिफर, जीरो इस बजट में साबित हुआ। न देश के किसान के लिए एक शब्द बजट में है, न देश के बेरोजगार युवा के लिए इस देश में इस बजट में एक शब्द है, न देश के गरीब और महंगाई रोकने के लिए बजट में एक भी शब्द है, न देश में शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए इस बजट में एक भी शब्द है, न कामगार और मजदूर के लिए बजट में एक भी शब्द है, न सामाजिक सेक्टर स्कीम्स के लिए बजट में एक भी शब्द है, न विपक्षी प्रांतों के लिए एक भी शब्द है। जहां देश की एक बड़ी आबादी रहती है, ऐसा लगता है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस स्टेशन से चलने से पहले ही डीरेल हो गई। सच्चाई यही है। हरियाणा का नामो निशान मोदी सरकार ने इस बजट से मिटा दिया। हरियाणा के नाम पर राखी गढ़ी का नाम लेकर एक झुंझुना एएसआई का पकड़ा दिया। ऐसा लगता है कि हरियाणा के लोगों की ना राय की जरूरत, ना मशवरे की जरूरत। बजट में खास ये है कि सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स रेड में हैं, निफ्टी लगातार गिरावट पे है। खास ये है कि जो उनसे अपेक्षा थी दशा और दिशा दिखाने की एट अ टाइम जब पूरा विदेशों से लेकर सारे जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी पे एक स्ट्रेस पड़ा हुआ है, वो दशा और दिशा दिखाएंगी, उसमें भी ये फेल हुआ है। तो इट इज अनफॉर्चुनेट। मेरी खुद की बहुत अपेक्षाएं थी कि इस बजट से देश की इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, किस तरीके से हम इस चैलेंजेस से गुजरेंगे, वो नहीं एक्सपेक्टेशन हुआ है। आम आदमी के लिए ना कोई राहत की सांस है, ना कोई टैक्स डिडक्शन है, ना कोई जीएसटी रिलीफ है, वो भी दुर्भाग्य है। पिछले बार जो बजट था वो बिहार और आंध्र प्रदेश के इलेक्शन देख के किया था, वो 2 स्टेट की बात थी। इस बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं उड़ीसा है, केरला है और अदर स्टेट है, लेकिन कुछ भी केरला को भी कुछ देने का काम इसमें ज्यादा हुआ नहीं। और महाराष्ट्र की बात हम लोग करें तो महाराष्ट्र तो कुछ भी नहीं मिला, ना पिछले बजट में कुछ मिला, ना इस बजट में कुछ मिला। एक की बात हुई है, वो बात किसकी हुई आपको पता है, बुलेट ट्रेन की बात हुई है, उसके सिवा कोई बात ही नहीं हुई है। तो हमारा कहना है कि महाराष्ट्र को आपने क्या दिया? जिस स्टेट ने आपको इतने सारे सरकार दिया, आपकी डबल इंजन की सरकार वहां बनी है, उस स्टेट को आपने कुछ भी नहीं दिया। तो हम महाराष्ट्र के जनता के पास आप क्या जवाब लेके जाओगे? पूरी तरह से मेरा कहना है। देखिए, किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, उसको आप रिलीफ नहीं दी है। महिलाओं के बारे में आपने कुछ भी अलग से योजनाएं नहीं बनाई कि महिलाओं को कुछ आर्थिक सक्षम करने की बात नहीं हो रही है। बच्चों को स्कॉलरशिप का जो है उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं हुई है। तो आप जो बात कर रहे हो सिर्फ ऊपरी बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे जो हालात है उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है, अपेक्षा यही थी कि कामगारों को इसमें फायदा हो, महिलाओं को इसमें फायदा हो, सर्वसामान्य वर्गों को इसमें फायदा हो, मिडिल क्लास में इसमें बहुत सारी राहत मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मुझे दिखा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिसकी जो अपेक्षा थी उसके सबसे कुछ भी नहीं आया है। अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 2 टायर और 3 टायर सिटी के बारे में इसलिए बोला गया कि वहाँ इलेक्शन है। मुझे यही कहना है अर्थ मंत्री जी से कि आप हर बार जो आती है इलेक्शन को सामने रख के बजट नहीं बनाना चाहिए। आपको जिस जगह की जरूरत है उस हिसाब से बजट बनाना चाहिए। आपको जब आपने कहा कि मेरे 3-4 प्रायोरिटीज है, जिसमें आपने कहा कि इकोनॉमिकल ग्रोथ मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से जाने वाले? जबकि आज सबसे ज्यादा तकलीफ में कुछ है तो एमएसएमई है, आज सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो बिजनेसमैन है, आज सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ी समस्या, महंगाई की समस्या, महंगाई की, उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं। जो हमारा रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में कुछ बोला। बजट में कुछ भी नहीं है और खाली टेक्निकल टर्म्स और जो लैंग्वेज यूज की गई है जो आम इंसान की समझ में भी ना आए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी बजट है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।